Welcome SVBs to our presentation on chapter number 5, The Lost Child, and this is part 3 of our presentation. So, in our previous presentation, yes, we have done a lot of things, right? So just we are going to have a quick recap of what we have learned in our previous presentation, and then we are going to continue this chapter in this presentation. So children, in our previous presentation, we learned that the boy, he was in the fair, yeah, he reached the fair in the village, yeah, and he was fascinated also, and he was feeling repelled. So he was in a confusion about it. See, attract का opposite है repel होना. So he was fascinated, मतलब वो attract हो रहा था crowd को देख के, and then he was feeling repelled also. ठीक है, तो attract का opposite repel होता है, तो don't get confused between these two words. Okay. Now what happened? This boy, he got fascinated and repelled by seeing the crowd. But then when he entered this fair, he saw a sweet seller. ठीक है, and the sweet seller shop, he saw the burfi and he wanted to buy that burfi because it was his favorite sweet. But he half knew that his parents are going to refuse, they are not going to buy it. So he did not say anything, he just murmured that I want the burfi. उसने सिर्फ murmur किया था कि I want this burfi, but he did not say his parents that I want to buy the burfi, and he moved on without saying anything because he knew the answer that they are going to say no. Now let's see what happened next. So what happened next? The flower sailor hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers they lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. Now again what happened? He moved on, मतलब स्वीट सेलर की जो शॉप थी वहाँ से वो आगे गया. अब आगे जाते उसको क्या दिखा? फ्लावर सेलर. ठीक है, फ्लावर सेलर मतलब फूल बेचने वाला मिला, एंड वो क्या बोल रहा था? हाउ द फ्लावर सेलर ही हॉक्ड व्हाट? A garland of gulmohar, sorry. Now what is this garland of gulmohar? गुलमोहर एक फ्लावर का नेम है, तो उसकी जो माला होती है हम उसे क्या बोलते हैं? द गार्लेंड ऑफ गुलमोहर. गार्लेंड इज वो माला जो होती है. ओके, सो द गार्लेंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लेंड ऑफ गुलमोहर. द फ्लावर सेलर ही वॉक्ड, राइट. नाउ द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिवली ड्रॉन, मतलब अब चाइल्ड को, जो लिटिल बॉय था, उसको वो बहुत जैसे रहते हैं ना, हम एक्साइटेड रहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है. सो ही गॉट दैट मच इररेसिस्टिबली ड्रॉन by seeing the garland of gulmohar, मतलब सो वो चीज़ तुरंत चाहिए थी. Now he went towards the basket where the flowers they lay heaped and half murmured. Now what the child did, he went towards the basket, वो उस basket के पास गया जहाँ पे जो flowers है वो lay heaped मतलब एक के ऊपर एक, और एक पहाड़ टाइप बन जाता है ना, हिल टाइप, तो उसको हम heap बोलते हैं. तो जो flowers का heap बना हुआ था वहाँ पे बास्केट के पास, तो वहाँ पे वो गया एंड हाफ ममर्ड, उसने वापस धीरे से बोला आई वॉन्ट द गार्लेंड, मतलब मेरे को ये गार्लेंड चाहिए. बट ही वेल न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम. अब उसे अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स, अगर ये अपने पेरेंट्स से बोलेगा दैट आई वॉन्ट दिस गार्लेंड ऑफ गुलमोहर, दे आर नॉट गोइंग टू बाय इट. वॉट दे आर गोइंग टू से, रादर दे आर गोइंग टू से दैट दे वर चीप. ठीक है, बहुत ही सस्ते हैं, दे वर चीप. इसकी वजह से ही डिड नॉट से टू हिज पेरेंट्स. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना मतलब अपने पेरेंट के आंसर के लिए वेट कर रहे, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ा. ठीक है. नाउ a man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons. So what happened? Now a man, he stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them. Now what happened? This boy, अब ये कहाँ से गया? पहले तो एक स्वीट सेलर की शॉप थी, वहाँ से वो आगे गया because he knew that his parents are not going to buy the burfi. So he moved on. He saw a flower seller. Now over there also he wanted to buy the garland of the
garland of gulmohar, but still he did not buy it, right, because he knew that his parents are not going to buy it. Now he moved on. Then और आगे बढ़ा. There he saw a man standing, like he was standing and he was holding a pole. एक पोल को पकड़ा हुआ था. पोल इज़ लाइक अ लॉन्ग रॉड, ठीक है. और उसमें क्या थे, एक येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बलून्स थे, उसमें बांध रखे थे एंड दे वर फ्लाइंग फ्रॉम इट, ठीक है. नाउ द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द, अब इतने सारे कलर्स थे ना, येलो भी था, रेड भी था, ग्रीन, पर्पल, तो ये रेनबो की तरह लग रहा था. तो दिस बॉय ही गॉट लाइक फैसिनेटेड, ही गॉट अट्रैक्टेड बाय सीइंग द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर. अब ये जो बलून थे थोड़े सिल्कन टाइप लगे थे, सिल्कन कलर जैसे उनका कलर था. तो ही वॉज गेटिंग अट्रैक्टेड, ही गॉट अट्रैक्टेड बाय सीइंग द रेनबो ग्लोरी ऑफ द silken colors of the balloon, and he was filled with an overwhelming desire to possess them. Possess मतलब own करना. अब overwhelming मतलब आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते. that he wanted to buy this, he wanted to buy the balloons. so like he had a overwhelming desire. मतलब जैसे रहता है ना कि हमने सपोज रहता है कि हम कुछ कुक कर रहे हैं, हमने उसकी क्वांटिटी मतलब पूरी ज़्यादा, हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, गैस पे रख रखा है. अब उसमें क्या होता है कि सपोज़ चाय बना रहे होते हैं, राइट, तो वो जब बॉईल कर रही होती है एकदम से उफन के बाहर आती है, राइट, दैट इज़ ओवरवेलमिंग. तो उसका जो डिज़ायर था बॉय का, राइट, वो ऐसे ही उफन के आ गया था. यू कैन को रिलेटेड विद दैट, ठीक है. डू नॉट राइट दिस इन एग्ज़ाम, आई एम जस्ट सेइंग इट दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर ईजीली, ठीक है. तो ओवरवेलमिंग डिज़ायर मतलब ऐसे ही जैसे चाय उफन के बाहर आती है ना, वैसे ही जो बॉय का डिज़ायर था कि उसे वो बलून चाहिए रेनबो कलर के, वैसे ही उफन के आ गए थे. ओवरवेलमिंग डिज़ायर हो गया था उसका, ठीक है. नाउ टू पोजेस देम, उनको ओन करने का, उन्हें ख़रीदने का उसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन, टू बाय देम ऑल मतलब सारी चीज़ें, उसे सारे बलून्स चाहिए थे जैसे वो रेनबो कलर जैसे दिखें, राइट. नाउ but he well knew his parents would never buy them the balloons because they would say he was too old to play with such toys. so he walked on further. अब क्या हुआ, अब इसने सेम चीज़ की, इसको रेनबो कलर के बलून्स तो अच्छे लग रहे थे, बट इसने अपने पेरेंट्स को नहीं बोला कि आई वॉन्ट दिस बलून, मेरे को ये बलून चाहिए. क्यों, क्योंकि फिर इसके पेरेंट्स कहते कि यू आर टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, तुम अब लाइक बहुत बड़े हो गए इन टॉयज़ के साथ, तो छोटे बच्चे खेलते हैं, ऐसे बोलते हैं इसके पेरेंट्स. तो इसकी वजह से बिना कुछ बोले वो वापस और आगे बढ़ा, ठीक है. नाउ देयर ही सॉ अ स्नेक चार्मर, आई मीन द स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forgotten him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. Now what happened? अब आगे बढ़ा. From the balloon shop he moved on and he saw a snake charmer. ठीक है, सपेरा होता है ना, that. So he saw snake charmer and he stood over there playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. हमने देख रखा है, राइट, तो एक पर्सन होता है वो फ्लूट को बजाता है, तो स्नेक जो होता है वो थोड़ा मूव करता रहता है, डांस भी करता है कभी कभार, कॉइल करता रहता है अपने आप में, ठीक है. तो ही सॉ दैट इट वॉज लाइक दैट, मैजिक शो में भी होता है, ठीक है. सो स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक दैट कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट. वो जो स्नेक था वो अपने आप को कॉइल कर रखा था बास्केट में. नाउ इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान. तो क्या हुआ, जो फ्लूट से म्यूज़िक बज रहा था तो उसके उसको सुनते हुए जो स्नेक था उसका जो हेड है वो रेज हुआ, मतलब उसने ऊपर की अपनी हेड, जो हेड है उसको ऊपर किया, एंड इट वॉज लुकिंग लाइक अ ग्रेसफुल बैंड लाइक अ स्वान. स्वान का ऐसा ग्रेसफुल बैंड आता है ना यूँ, तो ऐसे ही जो स्नेक है वो ऐसी पोजीशन में था बास्केट में, ठीक है, उसकी टेल ऐसी थी, और जो उसका जो हेड था वो ऐसे स्वान की जो नेक है उसकी तरह ग्रेसफुल जो बैंड आता है, ये बहुत ही ग्रेसफुल बैंड होता है, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है. तो ऐसे ही जो स्नेक है उसने भी ऐसी पोजीशन बना रखी थी, और सपोज़ ये टंग है स्नेक की, ठीक है. मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है, डोंट गो टू दैट, बट इट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट व्हाट द सीन इज़ गोइंग ऑन, ठीक है.
तो द स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू द स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन द बास्केट. ऐसे उसने कॉइल कर रखा था, ठीक है. एंड इट्स हेड इट रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. तो स्वान की नेक ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे आती है स्वान की नेक. ऐसे यहाँ पे आ रखी थी और जो स्नेक था इट्स हेड वाज लाइक दैट, ठीक है. Now while the music stole into its invisible ears like a gentle rippling of an invisible waterfall. तो अब इसमें क्या हुआ है, जो म्यूज़िक था फ्लूट का, ठीक है, फ्लूट से म्यूज़िक आ रही है, उस बच्चे ने द लिटिल बॉय द ऑथर इज़ एक्सप्लेनिंग कि वो कैसी थी. सो द म्यूज़िक स्टोल इनटू द इनविजिबल ईयर्स लाइक जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. तो ऐसे वो सुनने में लग रही थी, ठीक है. नाउ द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. जो चाइल्ड था वो स्नेक चार्मर के पास गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर. अब जो बच्चा था ही वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, लेकिन उसे पता था दैट हिज पेरेंट्स, उसने उसके जो पेरेंट्स हैं फॉरबिडन कर रखा है उन्हें. फॉरबिडन मतलब मना कर रखा है उस बॉय को कि वो कोर्स म्यूज़िक से, जो स्नेक चार्मर है वो तो ऑफकोर्स कोर्स म्यूज़िक को प्ले करता है. तो उस कोर्स म्यूज़िक को सुनने के लिए जो उसके बॉय के पेरेंट्स हैं उन लोगों ने फॉरबिडन कर रखा था, उसे मना कर रखा था कि तुम ऐसे कोर्स म्यूज़िक नहीं सुनोगे विच द स्नेक चार्मर प्लेस. नाउ ही प्रोसीडेड फर्दर, और फिर वो आगे और बढ़ गया, ठीक है. नाउ there was a roundabout in full swing. Men, women and children, carried away in whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. Now what happened? This boy, now first of all, before going to it, we are going to know what is the meaning of whirling. वर्लिंग का मतलब क्या होता है? वर्लिंग मीन्स सर्कलिंग, ठीक है. राउंड अबाउट ऐसे लगता है, ठीक है. इट्स लाइक दिस, सॉरी आई मेक इट प्रॉपर. तो एक सर्कल ऐसा होता है, बीच में एक सेंटर होता है, राइट. ऐसे ये ऐसे राउंड अबाउट ऐसे होता है. इतना एक्यूरेट तो नहीं बना है, बट फिर यहाँ पे ये प्लेस होती है, सीट होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं. फिर इधर भी एक ऐसी सीट होती है, ऐसे भी इधर होती है, ठीक है. तो ऐसी सीट होती है, फिर लोग इस राउंड अबाउट में बैठते हैं, ठीक है. और फिर लाइक इट मूव्स राउंड, वो राउंड राउंड ऐसे घूमता रहता है, राइट. मेले में होता है बहुत. और लाइक इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ जाइंट व्हील ऑल्सो. सो देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. नाउ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. ओके, सो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, दे cried away in whirling. I'll show you. Yeah, it's over here in this picture. Can you see over here? This is the roundabout, ठीक है. मेरी पिक्चर पे मत जाना, वो बहुत ही बुरी थी और आपको समझ में नहीं आएगा. तो अब इससे आप इजीली समझ सकते हैं. तो ये राउंड अबाउट ऐसे होता है, ये राउंड राउंड घूमते हैं और यहाँ पे लोग बैठते हैं, राइट. इसमें लोग बैठते हैं इन दिस थिंग्स, ठीक है. लोग सिट, द पीपल दिस सिट ओवर हियर. तो बाय सीइंग दिस राउंड अबाउट, देयर वाज अ राउंड अबाउट. There was a roundabout in full swing. Man, woman. Now what happened over here? There was a roundabout, right? So there was a roundabout in a full swing. Man, woman and children, they cried away in whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, mother and father. Now what happened? There was a roundabout in a full swing. Just now मैंने आपको roundabout की पिक्चर दिखाई थी, राइट. तो जो लिटिल बॉय था उसने वो roundabout देखा. Now over there he saw man, woman and children. They cried away in whirling motion. Whirling मतलब circular, वो गोल गोल घूमते हैं ना, इस मोशन को हम whirling motion बोलते हैं, राइट. So whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. तो जैसे गोल गोल घूमते हैं तो मतलब चक्कर भी आते हैं, so that is dizzy laughter. तो चक्कर भी आ रहे हैं और हम हंस भी रहे हैं क्योंकि मज़े आ रहे हैं हमें, राइट. सो दैट इज़ डिजी लाफ्टर, ठीक है. एंड दे वर सम पीपल वर क्राइंग ऑल्सो, या कुछ लोग डर जाते हैं, सो दे क्राई ऑल्सो. एंड सम दे वर हैविंग फन, उन्हें मज़े भी आ रहे हैं लेकिन ऑफकोर्स चक्कर भी आ रहे हैं, तो डिजी लाफ्टर, ठीक है. नाउ द चाइल्ड ही वॉच दम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. अब जो चाइल्ड था उनने लोगों को देखा, उसने लोगों को देखा जो राउंड अबाउट में थे. दे वर टेकिंग फुल फन ओवर देयर, लाइक दे वर हैविंग फुल फन ओवर देयर. Now by seeing that he made a bold request. अब उसमें पूरा bold request आया, मतलब
वो एकदम एनर्जी के साथ विदाउट गेटिंग सोचते हुए कि अब उसके फादर मदर मना करने वाले हैं वापस, तो ये बिना सोचे उसने क्या किया, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट की आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ मदर एंड फादर, कि मेरे को राउंड अबाउट में जाना है प्लीज़ मम्मी एंड पापा, ठीक है। नाउ देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। Now he turned to look on either sides. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled. Now what happened? He made a bold request that I want to go to the runabout. Please, mother and father. उसने ये रिक्वेस्ट तो कर दी, बट बाद में लाइक ही वेटेड फॉर सम टाइम, बट पीछे से कुछ रिक्वेस्ट ही नहीं, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं आया, मतलब उसकी मदर फादर ने येस और नो कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। नाउ फॉर दिस ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और वो टर्न किया उसके पेरेंट्स को देखने के लिए कि व्हाट हैपेंड, व्हाई दे आर नॉट रिप्लाइंग मी बैक। नाउ व्हेन ही टर्न बैक, ठीक है, ही टर्न सो दे वर नॉट देयर, व्हेन ही टर्न बैक उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे थे ही नहीं, अहेड ऑफ हिम, मतलब उसके सामने वो थे ही नहीं। नाउ they were not there ahead of him. He turned to look on either sides. अब जो बॉय था उसने अपने सारी तरफ देख लिया, मतलब लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सारी तरफ देख लिया, सारी डायरेक्शन में देख लिया, बट उसे अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई दिए, ठीक है। नाउ देयर वाज नो साइन ऑफ दैम, मतलब उसे अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई दिए। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। अब छोटा बच्चा था, ऑफ कोर्स इफ़ ही इज़ नॉट गोइंग टू सी हिज मदर एंड फादर ओवर देयर, ही इज़ गोइंग टू गेट स्कैर्ड, उसे थोड़ा डर भी लगेगा, देन व्हाट हैपन, वेयर आर माई पेरेंट्स, मैं खो गया हूँ, वेयर आई विल गो, मैं किधर जाऊँगा, लाइक दैट, ये सब सोचते हुए व्हाट हैपन, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, ठीक है। एकदम लाइक रहता है ना कि हमें बहुत ज़ोर से रोना आता है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है, हम उसे दबाते हैं टाइप ऑफ, ठीक है, जिससे हमारी आवाज़ नहीं निकलती लेकिन बहुत ज़ोर से रोना आ रहा होता है। तो ऐसे ही जो बॉय था, ही फुल ड्राई क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, ठीक है, ऐसे ही हुआ उसके साथ, एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग विद रियल फियर मदर एंड फादर। अब एकदम से क्या हुआ, इन हिज बॉडी देयर वाज अ जर्क, लाइक जैसे हम मैराथन होती है, ठीक है, हमें बोलते हैं रेडी स्टडी एंड गो, ठीक है, गो पे हम एकदम ज़ोर से भागने लग जाते हैं, राइट, तो वो क्या होता है, एक सडन जर्क आता है हमारी बॉडी में, ठीक है, बट ये वैसा जर्क नहीं है, ये इसका डर वाला जर्क है, फियर से जो जर्क आता है कि इसकी मम्मी पापा से दिख नहीं रहे, तो एकदम से इसकी बॉडी में एक जर्क आता है, सडन जर्क आता है, और इससे ये भगने लग जाता है जहाँ से वो लाइक जहाँ पे वो खड़ा होता है वहाँ से अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, और रोते रोते मतलब वो बोल रहा है मदर फादर, ठीक है, ऐसे चिल्ला रहा है। नाउ टीयर्स रोल, मतलब आंसू आ रहे थे उसके, ठीक है, टीयर्स रोल मतलब वो रो रहा था मतलब आंसू भी नीचे गिरेंगे, राइट, टीयर्स रोलिंग। नाउ लेट्स सी, लुक एट दिस पिक्चर एंड वी विल नो मोर। अब इसमें यू कैन सी दैट दीज आर डिफरेंट, ये फुटपाथ है, ठीक है, फुटपाथ है, सॉरी, दिस इज़ द फुटपाथ, एंड ओवर हियर यू कैन सी ऑन ईदर ऑफ द साइड्स, मतलब दोनों तरफ क्या हो रहा है, एक लाइन है ऑफ दीज शॉप्स, इधर है द फ्लावर सेलर, ठीक है, जिसके पास गार्लेंड ऑफ गुलमोहर, ये है स्वीट सेलर, इसके पास जलेबी है, बर्फ़ी है, गुलाब जामुन है, ये ऐसे बिस्किट जैसे लग रहे हैं, है ना। नाउ देयर इज़ अ बलून सेलर ऑल्सो, उसके पास पर्पल ग्रीन रेड येलो कलर के बलून्स हैं, राइट, और ये पोल होता है, ये जो स्टिक उसने पकड़ रखी है ना, इसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ स्नेक चार्मर ऑल्सो, जो नाउ यू कैन सी ओवर हियर द स्नेक, इसकी क्या है, ग्रेसफुल नेक लाइक अ स्वान, ठीक है, and it's like that. Now there's a, you can see the graceful neck of a swan over here, ठीक है, पूरा उसने अपना कॉइल कर रखा है टेल over here and its neck is moving up, head जो उसका है वो ऊपर है, ठीक है। Now this boy he is standing in middle of the fair। अब ये जो बॉय है यहाँ पे सामने ये जो राउंड अबाउट है इसको ये देख रहा था, और फिर उसके बाद जैसे उसने देखा राउंड अब पीछे, पहले तो उसने बोल रिक्वेस्ट बनाई कि आई वांट टू गो टू दिस राउंड अबाउट मदर फादर, और पीछे से कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो जैसे ही वो पीछे टर्न किया उसको उसके पेरेंट्स नहीं दिखे, उसने अपनी सारी तरफ देख लिया, ही सॉ ऑन एवरी साइड, ठीक है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिले, तो फिर अब यहीं पे खड़ा क्या हुआ उसके, लाइक ही स्टार्टेड क्राइंग एंड देन ही हैड सडन जर्क इन हिज बॉडी एंड ही रैन
towards, like he was running to find his parents, mother, father, and tears rolled out. देखो, you can see blue color on his cheeks, that is his tears, उसके आंसू हैं. ठीक है. So this is it for this presentation. We will continue this chapter in our next presentation. So thank you.